Good morning, dear students. The next part, what we are going to see is about fibers. But before that, let me tell you that how far we have just completed our syllabus. I have taken unit 3 polymers. In that, we have seen introduction and classification, including diblock, triblock polymers. Then we have seen the polymerization reactions, introduction, hydrolysis, hydrogenation, addition, substitution, cross-linking reactions, Cure reactions, reactions with various aliphatic and aromatic pendant groups in polymers, applications of plastics. Under that we have seen thermosetting and thermosofting. थर्मोसेटिंग में हमने फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड और पॉलीयूरेथेन एग्जांपल लिए थे. थर्मोसॉफ्टिंग में पीवीसी लिए थे और पॉलीथीन लिए थे. नाउ फैब्रिक्स we are going to study under fabrics, that is natural and synthetic fabric. उसमें एक्रिलिक, पॉलीअमाइडो एंड पॉलीस्टर लेने वाले हैं. उसमें फैब्रिक्स यानी फाइबर्स, ठीक है. एंड देयर आर वेरी लेस सिलेबस remained. Let us start with fibers. Fibers are a linear polymers having relatively high tensile but low elasticity in the direction of fiber axis. These are the linear polymers. सबसे important क्या है? These are the linear polymers. These are linear polymers. Linear बोलने से there is no cross linking, having relatively high tensile but low elasticity. लो इलास्टिसिटी जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है. And in the direction of fiber axis. To a material will be classified as fiber, its length must be at least 100 times its diameter. Fiber is material in the form of thin filaments occurring in nature or produce. Fibers अभी naturally भी prepare कर सकते हैं या synthetically भी obtain होता है. Which can be woven into fabrics. हम फाइबर्स यानी फैब्रिक में जो फाइबर्स रहते हैं उसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, लेकिन फैब्रिक यानी इज वन एंड द सेम डेफिनेशन ऑफ फाइबर्स, ठीक है. अगर किसी ने आपको फैब्रिक पूछा तो उसके अंदर फाइबर्स आते हैं. फैब्रिक इज नथिंग बट अ होल वर्ड एंड फाइबर्स मीन्स कंटेनिंग इन इट द थ्रेड. फाइबर्स मीन्स द थ्रेड ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल. A fiber is a thin thread of natural or artificial substance, especially one that is used for to make a cloth or a rope. रस्सी बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए फाइबर्स का उपयोग किया जाता है और फाइबर्स जो है वो नेचुरल या आर्टिफिशियली पाए जाते हैं. फाइबर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं. फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज. ओके, विच वन इज दैट? नेचुरल एंड सिंथेटिक fibers. Natural fibers are obtained from natural sources. अभी natural fibers जो है natural resources से form होते हैं like plants and animals. Next slides. So we will see that any product, any definition for fibers, you see the examples. यहाँ jute material है, cellulose है, there are so ample cotton है, silk है. So these are all natural. ये जो दिख रहे हैं आपको, these are all natural fibers. Okay, it is the smallest visible unit of textile product. where textile product यानी टेक्सटाइल में ही फाइबर्स, कॉटन बनाना है, क्लोथ बनाना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज होगी, ठीक है. उसमें उसी का फंक्शन है. So it's a hair like strand that is very small in diameter. Fibers are fundamental units or building blocks used in making the textile fibers. Now classification of fibers. Fibers is of two types. One is natural fibers or synthetic fibers. We can say synthetic fibers. Yeah, man-made fibers. We can say it as man-made fibers. So natural fibers are obtained from what? Vegetable fiber, animal fibers, mineral fibers. Okay, man-made यानी man-made fibers or synthetic fibers यानी which is prepared in the laboratory. And
inorganic fibers, which is obtained synthetically only. So classification of fibers can be done by type, natural and manufactured, and length, short staple, long staple, continuous filament. Classification of fibers can be done by अलग अलग प्रकार के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली पाए जाते हैं. कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई बहुत रिजिड होते हैं. जैसे आप अगर जूट का देखते हो, कॉटन का देखते हो, सिल्क का देखते हो नेचुरल, तो अलग अलग उसकी जो थ्रेड्स रहते हैं वो अलग अलग होते हैं. उसी को यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फाइबर इज classified into two, that is natural and synthetic. Under natural if you see that is animal से बनता है. एनिमल के अंडर एग्जाम्पल है सिल्क है, ऊल है, हेयर है, ठीक है. और दूसरा नेचुरल है सेलुलोज. एंड तीसरा टाइप जो है मिनरल जो कि एग्जाम्पल है एस्बेस्टॉस, ठीक है. मिनरल से पाए जाने वाले जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं मिनरल्स, उससे बनाए जाने वाले भी फाइबर्स है. सो ये रही नेचुरल फाइबर्स की बात. क्योंकि फाइबर ने हमने बताया कि दो टाइप्स के कैटेगरीज है. वन इज नेचुरल फाइबर एंड दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर कम्स अंडर एनिमल. एनिमल का एग्जाम्पल देखा है सिल्क, वूल, हेयर, और दूसरा है सेलुलोज. तीसरा टाइप है मिनरल जो कि एग्जाम्पल है एस्बेस्टॉस. सिंथेटिक फाइबर्स में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है. अभी ऑर्गेनिक में पॉलीअमाइड है, पॉलीस्टर है, टेरेलिन है, बहुत सारे हैं. इनऑर्गेनिक में ग्लास, कार्बन, बोरॉन, सिलिक कार्बाइड, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक फाइबर्स, ठीक है. उसके फर्दर हम वी विल नॉट गो. सेलुलोज में भी काफी एग्जांपल्स है, बट विल जस्ट हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है. लेट अस मूव फॉर द फर्दर स्लाइड. Natural fibers. The polymers which are isolated from natural material are called natural fibers. These are also known as biological polymers. These are also known as biological because they are obtained by the living organisms. जो लिविंग चीजें, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहां से हमको नेचुरल फाइबर्स मिल रहे हैं. इसीलिए नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज biological polymers. They are classified into two types according to their occurrence in the nature. Which are they? Now natural fibers हमने पहले ही डिस्कस किया वो चार्ट में. अभी फिर से देख रहे हैं कि नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है. एनिमल फाइबर है, वेजिटेबल या सेलुलोज फाइबर है, एंड मिनरल. हमने एनिमल के अंडर में भी देखा कि कौन से फाइबर्स हमें मिल सकते हैं एनिमल के अंडर. तो वो है सिल्क, ऊल एंड हेयर. अब हेयर यानी कोई भी, जैसे गोट है, जैसे शिप है, जैसे कैमल है, इनके जो हेयर्स रहते हैं वहां से भी हमको फाइबर्स मिलते हैं. नाउ सेलुलोज यानी फ्रूट है, सीड है, ओके, बास्ट है, लीफ है. दिस आर द एग्जांपल ऑफ वेजिटेबल फाइबर्स. और मिनरल में एस्बेस्टोस यानी रॉक, वही जो अर्थ क्रस्ट में हमको मिलते हैं, उस तरीके के फाइबर्स को बोला जाता है मिनरल फाइबर्स. सो दिस ऑल कम्स अंडर नेचुरल फाइबर्स. सो नेचुरल फाइबर्स कितने टाइप के हैं? एनिमल फाइबर्स, वेजिटेबल फाइबर्स एंड मिनरल फाइबर्स. उसके एग्जांपल्स यहाँ पे चार्ट में दिए गए हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वेजिटेबल फाइबर्स, और लेट अस सी वेजिटेबल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स. Now what are vegetable fibers? Cotton fiber is obtained from cotton plant. It is one of the traditional fibers in the textile industry. यहाँ पे आप example देख रहे हो. Linen fabric is obtained from the flax plant, and the properties of linen fabric are very much similar to that of the cotton fabric. ठीक है. ऐसे भी plants हैं जहाँ पे हमको linen fabric मिलता है, तो उसमें soft cotton के जैसे material रहता है, तो उससे हमको लेनिन नाम का फैब्रिक मिलता है. जैसे कॉटन क्लोथ्स बोलते हैं, वैसे लेनिन भी कपड़ा है. इट इज अ टाइप ऑफ क्लोथ विच इज ऑब्टेन्ड बाय द obtained from the flax plant. Now jute, you know, jute, it is obtained from jute plant, and on account of its high strength it is perfect for using packaging materials. ये भी आप लोगों को मालूम है. Let us move further. Animal fibers में silk fibers आते हैं. जैसे wool is commonly obtained from sheep. Wool fabric is soft touch and provides warmth to the weather due to the which is preferred choice for the winter wrapping. Synthetic fibers.
सिंथेटिक फाइबर्स आर, नाउ हमने नेचुरल फाइबर्स देखे, अभी हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स देखें. Synthetic fibers are man-made fibers. Synthetic fibers are made from different chemicals, and each kind of synthetic fibers have their own properties. Synthetic fibers are more in length and are long-lasting. बहुत दिनों तक टिकते हैं synthetic fibers. The only limitation in synthetic fiber is that they are poor absorbents of moisture and they catch fire easily. Synthetic fiber का drawback क्या है? काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन वो जल्दी ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देता है और दे कैन कैच फायर इजीली. ओके, दे आर अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. कौन से? सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं. ठीक है. Synthetic. The fibers which synthesized in the laboratory from chemicals as starting materials are referred to as synthetic material. Now we will see the examples of synthetic, that is polyacrylic, polyester, polyamide. अभी हम लोग देखने वाले हैं polyacrylic क्या होता है. polyacrylic के 2-3 examples देखेंगे और उसके बाद हम polyamide and polyester देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग polyacrylic देखेंगे because ये synthetic polymers है, तो थोड़ा सा उसके बारे में introduction. Now polyacrylic acid, which is the short form of PAA, is a polymer made from monomer acrylic acid. Acrylic acid जो होता है monomer, उससे ये PAA बना है. These long chain contains thousands of monomer units and the polymer also has some cross linking between the chain. अब ये लीनियर पॉलीमर में नहीं आते, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स में आते हैं. मेनी पॉलीमर्स सच एज पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन यूज्ड इन ट्रैश बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, स्टायरोफोम फॉर एग्जांपल, हाइड्रोफोबिक मीनिंग दे रिपेल वाटर. लेकिन पॉलीएक्रिक एसिड की स्पेशलिटी क्या है? दे आर हाइड्रोफिलिक, दे अट्रैक्ट वाटर. बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर. हाइड्रोफिलिक यानी दे आर वाटर लविंग और उसके कारण दे अट्रैक्ट वाटर, मीन्स ये वाटर को इजीली बॉन्डिंग तैयार करता है. दस PAA इज ए सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर. क्या होता है? इट इज ए सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर, जल्दी से एब्जॉर्ब होता है. वाटर इज readily absorbed. This polymer which is obtained, it is a super absorbent, means it is readily absorb the water. Okay, why? Because of the carboxylic acid present in this. So this is what CH2 double bond CH COH. Because of carboxylic, it is having the hydrophilic in nature. और यही कारण है कि वो वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म करता है. नेक्स्ट स्लाइड. पॉलीएक्रिलिक एसिड. अभी हमने एक्रिलिक एसिड से पॉली, क्योंकि एक्रिलिक एसिड है, मोनोमर है. ओके, क्रॉस लिंक मोनोमर है और वो इट गिव्स यू पॉलीएक्रिलिक. नाउ पॉलीएक्रिलिक में एक्रिलिक जो है, द वेरियस एक्रिलिक पॉलीमर्स आर एज फॉलोज. ठीक है, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है एक्रिलिक, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वन फर्स्ट वी विल सी पॉलीमिथाइल एक्रिलेट एंड दूसरा है पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. यस, व्हाट? पॉलीमिथाइल एक्रिलेट एंड दूसरा है पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल. पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल का दूसरा नाम उर्लोन भी है. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? एक्रिलिक इज ऑफन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल. ठीक है, वूल की जगह रिप्लेसमेंट कर सकता है. अब वूल तो क्या है? नेचुरल फाइबर है, लेकिन उसकी सेम क्वालिटी एक्रिलिक में पाई जाती है. एक्रिलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंट. यानी ये ज़्यादा अगर हमने उसको स्ट्रेच भी किया या वी आर जस्ट मेकिंग इट क्रशिंग द क्लॉथ, वी आर क्रशिंग द क्लॉथ, इट बिकम्स स्ट्रेट. ओके, ये वाला क्वालिटी है. वी इन आवर मार्केट वी सी वी बाय सम मटेरियल्स, समटाइम्स इफ दैट फाइबर कंटेन्स एक्रिलिक, देन इफ वी आर जस्ट क्रशिंग इट, कीपिंग लाइक in any situation, it is not going to be give you folds. Okay, it the cloth appears as it is because it is wrinkle resistance. Okay, हम देखते हैं ना कपड़ों में बहुत सारी अगर बहुत दिन पड़े रहे तो फोल्ड्स आ जाते हैं. तो लेकिन एक्रिलिक
मटेरियल या एक्रिलिक अगर फाइबर रहा तो वो रिंकल रेजिस्टेंस होता है. इट इज इजी टू वॉश एंड ड्राइज क्विकली. अगर उसको धोया गया, हम देखते हैं जो आजकल की सिंथेटिक साड़ियाँ होती है, कपड़े होते हैं या कोई भी क्लोथ्स होते हैं, इफ दे आर सिंथेटिक, इफ वी आर वॉशिंग इट, इट ड्राइज इजीली. इट इज रेजिस्टेंट टू मॉथ, ऑयल्स, केमिकल्स एंड डेटीरियोरेशन एक्सपोजर टू सनलाइट. इन चीज़ों का उस कपड़े पे, एक्रिलिक फाइबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इट इज रेजिस्टेंस टू मॉथ्स, ऑयल्स, केमिकल्स एंड डिटोरेशन. यानी इट हैज बीन टेस्टेड लाइक दैट. So this is a wonderful discovery of an polymer, that is polyacrylic. Next, now we'll see polymethyl methyl acrylate. It is a commercial name are lucite, plexiglass acrylate and perspex. ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं पॉलीमिथाइल एक्रिलेट के. कौन से लूसाइड बोल सकते हैं, प्लेक्सिग्लास, एक्रिलाइट, perspex. This polymerization of monomer is methyl acrylate. Monomer is methyl acrylate. So this is an acrylate and this is a methyl acrylate. Okay, this portion comes under middle. Using peroxide for free radical, it gives you polymethyl acrylate. What it gives you? पॉलीमिथाइल. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमिथाइल एक्रिलेट. यानी इसका जो सब्स्टिट्यूट है एक्रिलिक का, ये जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है. H की जगह यहाँ पे हमने क्या लिया, मिथाइल एक्रिलेट. यहाँ H करने से हमको क्या आता है, एक्रिलिक एसिड. अगर हम मिथाइल ऐड करते तो मिथाइल, पॉलीमिथाइल, मीठा एक्रिलेट बनते हैं. और मिथाइल एक्रिलेट की प्रॉपर्टीज क्या है फिर, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट इज ए हार्ड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर विथ हाई ऑप्टिकल क्लियरिटी. ऑप्टिकल क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंट जो है. इट इज एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास ऑल्सो. ओके, इट इज एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास. यानी ग्लास की जैसे ओपेक टाइप का फाइबर होता है. इट इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट लेंसेज, लाइटनिंग फिक्सर्स, विंडोज एंड सन विजन एंड एयर. देखो अभी इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होते हैं, कॉन्टैक्ट यानी ऐसे टाइप ऑफ ग्लास ही होता है. ठीक है, सो दिस इज पॉलीएक्रिलिक से देखो, अगर हमने मिथाइल ग्रुप उसको ऐड कर दिया तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी चेंज होके हमें क्या मिल रहा है, एक हार्डन पॉलीमर मिल रहा है. वो भी क्या बोला गया है, हाई ऑप्टिकल क्लियरिटी. एंड उसकी कहाँ यूज होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, लाइटिंग फिक्चर्स, विंडोज, सन विजन एंड इन एयरक्राफ्ट. नाउ पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, नाउ इट्स शॉर्ट फॉर्म इज PAN. इसका दूसरा नाम भी है ओरलॉन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीविनाइल साइनाइड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीविनाइल साइनाइड एंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ये उसका स्ट्रक्चर है पॉलीविनाइल साइनाइड का. इट इज प्रोड्यूस from acrylonitrile by the radical polymerization techniques using peroxide initiate. Acrylonitrile monomer can be obtained from acetaldehyde and hydrogen cyanide. कहाँ से बनता है पॉलीएक्रिलोनाइट, स्टार्टिंग मटेरियल है acetaldehyde and hydrogen cyanide, जहाँ पे हमको मिलता है acrylonitrile and then we get polyacrylonitrile. Okay, in this way we get a polyacrylonitrile. Now उसकी properties क्या है, it is also known as polyvinyl cyanide. It prepared by the polymerization of acrylonitrile. The reaction is carried at 40 degrees centigrade and atmospheric pressure with a small amount of benzoyl peroxide as a free radical catalyst. आपको free radical अगर use किया होगा आपने free radical reactions, तो आपको मालूम है कौन से initiators use, उसमें से benzoxyl peroxide. Benzoyl peroxide is one of the free radical catalyst. And polyacrylonitrile is also called as Orlon. Okay. In this way, students, today we have learned about the fabric. Under fabric, we have seen natural and synthetic polymers. Fabric also called as fibers. We have seen water fibers,
ओके, देन फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। फिर नेचुरल फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन, कितने टाइप्स के होते हैं वो भी देखा हमने, एनिमल, वेजिटेबल, ओके। एंड देन सिल्क ना एनिमल में आता है। फिर मिनरल वाला देखे, फिर सिंथेटिक में देखे हम लोगों ने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग अभी सबसे पहले पॉली एक्रिलिक देख रहे हैं, उसमें भी हमने उसके होमोलॉगस डेरिवेटिव्स देखे। उसका होमोलॉगस डेरिवेटिव है, उसकी जो मॉइटी है वो किसमें है, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट एंड पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द नेचुरल पॉलीमर्स, फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में हम सिर्फ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल तक ही आए हैं। नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर polyamide, okay, polyamide, and then we will just proceed for the polyesters. So ये important जो है सिंथेटिक फाइबर्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच लिसनिंग।